So any questions regarding previous lecture? नो सर. प्रॉब्लम सॉल्व किए थे? यस सर, किए थे, हो रहे थे सर. Okay, great. So in fact, last time we started with the modeling, and we saw the modeling of electrical systems, mechanical translational systems, and then we moved towards mechanical rotational systems. We have developed differential equations, and then we transformed it into Laplace transform and to get the solution using those algebraic equations. And then we started talking about transfer function. What is transfer function? That is, in fact, the relation of output and input, keeping all the initial conditions equal to 0. And in that context, we started with some differential equations. We had taken the Laplace transformation, and then making all the initial conditions equal to 0. We have come up with the transfer function of the system, which is T of s is equal to y of s over r of s, and that is equal to minus s plus 5 over s squared plus 6s plus 8. Now that is our transfer function because we are making all the initial conditions equal to 0. Then we looked at different responses, and we said that zero state response is in fact when all the initial conditions are 0. So in fact, you will be getting it from your transfer function. Your transfer function is y of s and y of s over r of s, and if you are interested in y of s zero state mein, so that would be equal to t of s multiplied with r of s, and in this particular situation आपको इस example में it is given that r of t is equal to 7 e raised to power minus 3t, and you can get r of s that will be equal to 7 over s plus 3, and that would be multiplied here. So that's your zero state response in s domain. And zero input response kya hota hai? When you are considering the initial conditions. So if you are given initial conditions, if you go back to this equation, so you will be putting all these initial conditions, the values which you are taken, which you are given to you. So this portion initially it was 0, but now that would be equal to 8. So as a result of that, y s0 input will be equal to 8 divided by this polynomial, which is called the characteristic polynomial. So 8 divided by s square plus 6s plus 8. And the complete response is in fact y of zero state response plus y of zero input response. This is zero state response, and that's your zero input response. And alternatively, we are taking it as the natural and the forced response. And again, from the same complete response, we can get our natural and forced response. And it is, you can see from here that this one is forced response, the term coming from your input, because s plus 3 is the term coming from your input, and s plus 2 and s plus 4 is the terms coming from your characteristic polynomial. So that's your natural component, and the forced response is coming from your input. Agreed? Yes sir. Okay. So, and then we did several examples, and in fact these are the drill problems from your book for your zero state response. And then we did some examples for the complete response. So these are any questions regarding these problems, these drill problems which we had already solved? Any issue? No, sir. Okay, great. So let's move to Sir, I have a problem. तो आपने एक क्वेश्चन में किया था वो सर एक प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन में. जी बताइए, आई एम लिसनिंग. सर एक क्वेश्चन में आपने वो लैप्लास इनवर्स लिया था, उसमें dy by dt माइनस बेटा y क्वेश्चन 0 किया था सर. वहाँ पे वो आपने मेरा बेटा क्वेश्चन बताइए, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा? बताता हूँ सर, एक मिनट.
एक मिनट सर बता रहा हूँ। सर आप स्लाइड काइंडली पीछे करेंगे थोड़ी सी। जी पीछे कर लेते हैं। सर इससे अगला क्वेश्चन था वो वाला जिसमें वो रिस्पांस निकालने थे, नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस। सर आपने कहा था लेप्लास इनवर्स वहां पे लिया है आपने, तो लेप्लास बेटा इनवर्स मुझे लेते हैं तो वहां प्रॉब्लम पे तो बता दें, मुझे जी, जगह तो जी बताएं सर ना यही किस जगह पे। यही प्रॉब्लम जी यही बोले यही किस स्लाइड है जगह। सर। ये जी बोले सर प्लीज। ये देखें, ये लिखा हुआ है आपने लेप्लास इनवर्स लिए एस ऑफ वाई ऑफ एस। जी तो जी जी। यहाँ जी ये कैसे आया, ये नहीं समझ लगी। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट की है या फिर कैसे आया है, ये इस चीज़ की नहीं समझ लगी मुझे। बेटा ये आपने ये कैसे किया था, ये कैसे किया है। सर उसका डी लेप्लास ये डी निकलता वाई बाई डी टी का लैप्लास क्या होता है। है एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो। माइनस वाई ऑफ जीरो। गुड शाबाश। सो इट्स अ टू वे ऑपरेशन ना। लैप्लास टाइम डोमेन से लैप्लास में जा सकते हैं और लैप्लास से टाइम डोमेन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सर जी सर, तो सर यहाँ Yes. पे प्लस फिर अकेला डी वाई बाई डी टी नहीं आना चाहिए था इस पूरे का लेप्लास, लेप्लास इनवर्स सॉरी। अगले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं या इसी जगह की बात कर रहे हैं। सर इसी जगह की बात कर रहा हूँ, इसी इसी जगह की। जगह में तो बेटा ये 6 जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। नहीं सर आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नेक्स्ट स्लाइड में एस वाई ऑफ एस का लेप्लास इनवर्स लिया है, वहाँ पे डी वाई बाई डी टी माइनस वाई ऑफ जीरो लिखा है। वो माइनस वाई ऑफ जीरो वो उसी को कैसे तो ला आएगा रहे हैं वहाँ पे? ना। यू आर एब्सोल्यूट ठीक है मुझे आपका दुख समझ आ गया। गॉट इट। देखो बेटा असल इशू क्या है, असल इशू ये है कि फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो ट्रांसफर फंक्शन है यहां से तो हमें जीरो इनपुट रिस्पांस या ये कैसे फाइंड आउट करें जीरो इनपुट रिस्पांस। जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए तो आपको इनिशियल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे है ना। जी सर ऐसे ही। ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन जब आपको गिवन है तो यू कैन नॉट डू इट। यहां पे आपको नहीं पता बिकॉज इनिशियल कंडीशन जीरो करके आपने इसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब आप जीरो स्टेट रिस्पॉन्स तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ये उसके लिए हम कर रहे हैं। सो व्हाट यू डिड, TFS is equal to YFS over RFS and that's equal to the transfer function. So मैंने सिर्फ ये टर्म्स लिख दी हैं, मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, एंड दैट इज SYFS plus 3YFS is equal to 4RFS. ये स्टेप यहां तक क्लियर है। जी सर यहाँ तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए SYFS जो है, अगर ये टर्म आई हुई है SYFS, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाऊं तो ये dy by dt से आई हुई है ना। अच्छा मैं आपका दुख समझ गया हूं। मेरा ख्याल है ये टर्म यहां पे नहीं होगी, यू आर राइट, क्योंकि आगे आ जाएगी ना। मेरा ख्याल है ये गलती से हमने लिख लिया है डी डी टी बाय ऑफ वाई ऑफ टी एंड दैट वुड बी प्लस 3y ऑफ टी दैट्स इक्वल टू 4r ऑफ टी। अब जब हम इसका दोबारा से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इन दैट केस अब ये रिस्टोर कर रहे हैं हम अपनी इनिशियल कंडीशन को, तो ये आपके पास आ गई। मेरी बात समझ में आई है आपको। जी सर अभी समझ आ गई है। मैं वही कह चल रहा था यहाँ पे वाई ऑफ जीरो मतलब। मैं ठीक है आपकी बात ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी आपकी बात। सो जब आप लैप्लास डोमेन से आ रहे हैं तो आप ये वो नहीं लिखेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहां पे भी ये नहीं होगा, यू आर राइट, क्योंकि आगे जाके उसने इनकॉर्पोरेट हो जाना है, ठीक है। जी सर ठीक हो गया। ओके ग्रेट ग्रेट। चलेंगे। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट।
ओके, सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम एज वेल। अब ये प्रॉब्लम आप मुझे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बताएं कि आरएफएस क्या है? 1/s। RFS is equal to 1/s, ठीक है? ये मसला तो हल हो गया। Now what we should do? This is equal to YFS divided by RFS, and that's equal to S minus 5 divided by S plus 1, S plus 2. And if we are interested in Y zero state of S, and that's equal to what? That's equal to S minus 5 divided by S, S plus 1, S plus 2. ठीक है जी? Agreed? Yes, sir. Okay. So Yes, you sir. will be doing. जी जी, कोई कंफ्यूजन किसी भी जगह पे हो तो प्लीज आस्क। सो जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन करनी है अब आपने। So as a result of that, it is in fact equal to minus 5 over 2s, यानी a की वैल्यू जो है वो minus 5 over 2 है, b की वैल्यू जो है that is equal to 6, और c की वैल्यू जो है minus 7 over 2. Okay, so that would be plus 6 over s plus 1 minus 7 over 2 into s plus 2. जी जनाब, अगर मैं टाइम डोमेन में जाना चाहूं, जी एनी वॉलंटियर? -5/2 -5/2 u of t u of t। -5/2। जी आगे u of t लिखें या ना लिखें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जी प्लस 6 e की पावर माइनस t गुड, -7/2 e की पावर माइनस 2t। e raised to power minus 2t. So that's your zero state response, ठीक है? और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स के लिए क्या करना होगा? We should have the initial conditions. We should have the initial conditions. और इनिशियल कंडीशन के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? So I have Laplace inverse लेना पड़ेगा इसे। I have y of s divided by r of s, and that's equal to s minus 5 divided by s square plus 3s plus 2, s square plus 3s plus 2. So y of s, this is s square y of s plus 3 of s y of s plus 2 y of s, and that's equal to s minus, sorry, s r of s minus 5 r of s. ओके, क्या करना चाहिए यहाँ पे? इनवर्स लैप्लास ले लेते हैं। क्या वैल्यूज आएंगी? d square y of t over dt square, d square y of t by dt square माइनस, सॉरी y of ठीक है, बस ये ठीक हो गया, प्लस 3 dy by dt, dy by dt ठीक, plus प्लस 2 y of t 2 जी y of t, y and of that's equal to d dt of r of t minus 5 r. Agreed? जी सर। अगेन लैप्लास डोमेन में अगर हम जाते हैं, असल चीज ये है that you must be convinced why we are doing it, because I'm interested in why zero input response, and why zero input response demands कि मुझे initial conditions चाहिए।
ट्रांसफर फंक्शन में मुझे इनिशियल कंडीशंस कहीं नजर नहीं आ रही हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू टाइम डोमेन एंड देन फ्रॉम टाइम डोमेन टू लैप्लास डोमेन में मैं जब जाऊंगा तो मुझे इनिशियल कंडीशंस मिल जाएंगी. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो दैट वुड बी s स्क्वायर yfs, वही टर्म मुझे मिल गई है, बट दिस टाइम s yf0 माइनस y बार ऑफ 0 जो है मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई हैं, ये इनिशियल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है. प्लस 3 क्या आ जाएगी टर्म? एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0. अब ये इनिशियल कंडीशन वाली टर्म आ गई, प्लस 2 वाई ऑफ एस एंड दैट्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दैट इज एस आर ऑफ एस माइनस आर ऑफ जीरो, आर ऑफ 0 माइनस 5 आर ऑफ एस. ठीक हो गया. सो अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन वाली सारी टर्म्स जो है मुझे मिल रही हैं उसी तरह से. लेट्स डू इट. वाई एफ एस की टर्म्स अगर हम मैं अलहदा करूं तो दैट वुड बी एस स्क्वायर माइनस प्लस 3s प्लस 2. द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये आप देख सकते हैं, दैट्स देयर. उसके बाद माइनस 5 y ऑफ 0 माइनस y बार ऑफ 0. यहाँ से मैं प्लस r ऑफ 0 ये वाली इनिशियल कंडीशन वाली टर्म्स अलहदा कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू r ऑफ s की अगर हम टर्म्स देखें तो दैट इज s माइनस 5. यहाँ पे एक टर्म शायद मैंने मिस भी किया है, minus 3y of 0 and plus r of 0. And finally, y of s will be equal to, सर इसमें जी बोलें. सर रेड लाइन के बाद जब आपने ये लेप्लास इनवर्स लिया है तो आपने वो जो है उसके बाद लेप्लास आपने दोबारा लिया है, तो इक्वेशंस तो आप इसमें मैच ही नहीं कर रही. मैच कर रही है ना, मतलब इनिशियल सिर्फ इनिशियल कंडीशंस एक्स्ट्रा आ गई है ना, इसीलिए तो ये काम किया है. सर तो सर मैं वही कह रहा था, ऊपर जब आपने रेड इक्वेशन लिखी है तो उसमें s स्क्वायर y s है, तो नीचे वाली इक्वेशन बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि ऊपर वाली में तो वो इनिशियल कंडीशंस ही मिसिंग थी. मेरा बेटा तो यही आप तो मोटिवेशन, यही तो मैं पिछले 2 दिनों से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि बेटा ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन है y of s over r of s with all the initial conditions equal to 0. हाँ ना तो बोल दो. यस सर वो तो है, लेकिन ये स्टेप सर वहाँ पे फिर आप लिख देते इनिशियल कंडीशन उसके साथ ही. चले आप बोले कहाँ पे लिखना है. आपको ये गिवन है सर, वही ये गिवन है आपको. अब मुझे बताएं, मुझे y0 इनपुट रिस्पांस फाइंड आउट करना है, आप मुझे सजेस्ट करें मैं क्या करूं. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेड इक्वेशन की नीचे वाली इक्वेशन है, ये स्टेप करना जरूरी है. ये करना जरूरी है स्टेप. भाई आप ना करें, मैं तो सिर्फ आपको इस प्रोसेस में से गुजार के लेके जा रहा हूं सो दैट कि आप कन्विंस हो जाएं कि ये इनिशियल कंडीशंस कहां से आई हैं. मुझे रिस्टोर करनी है ना अपनी इनिशियल कंडीशंस, क्योंकि जब मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा था उस वक्त मैंने ये इनिशियल कंडीशन 0 कर दी थी. अब मुझे दोबारा रिस्टोर करना है सो दैट कि मैं 0 स्टेट रिस्पांस को और 0 इनपुट रिस्पांस को इंडिपेंडेंटली केटर कर सकूं. सो अगर आप इसको देखें तो s माइनस 5 डिवाइडेड बाय s square plus 3s plus 2 into RFS. So that's what? That's your 0 state response. ये आप पहले कर चुके हैं. ये देखिए आपने यहाँ पे ये चीज देख ली है. ये 0 state response है. ये RFS इधर चला गया है तो ये आपके पास 1 over s टर्म जो है ये आ गई है. ठीक. तो अब जो आपका 0 इनपुट रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस 5 y of 0 minus y, it is 5 or s, it is s,
It is sy of 0 minus y dash of 0 minus 3y of 0 plus r of 0, and that's divided by the characteristic polynomial, and that's your zero input response. Got it? Yes sir. कन्विंस हो या अभी तक डाउट्स हैं दिमाग में? या सर वही लग रहा था कि अननेसेसरी स्टेप है, लेकिन वो समझ आ गया कि आप कह रहे थे कि मतलब कि वो रिस्टोर करने के लिए जरूरी है ना? वो रिस्टोर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे इनिशियल कंडीशंस को अब देखना है. जीरो इनपुट रिस्पांस देख रहा हूं तो मुझे ये देखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है. ठीक है, ठीक है सर. ओके. सो फाइनली व्हाट विल हैपन, अब अगर मैं जीरो इनपुट रिस्पांस देख रहा हूं तो मुझे अपनी इनिशियल कंडीशंस भी पता चलनी चाहिए कि वो क्या हैं. अच्छा, यहाँ पे एक गलती है. इट इज y डॉट कर लें इसको. दिस इज y डॉट ऑफ 0 या y दैट्स इक्वल टू 4. एक ही चीज है. ओके, सो व्हाट विल हैपन जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए, that would be equal to minus 3s, just putting the values, plus 4 minus 9 plus 0 divided by s square plus 3s plus 2. Now that's your zero input response. ठीक है? Yes sir. Minus 3s minus 5 divided by s plus 1, s plus 2, and again you will be doing a over s plus 1 plus b over s plus 2. so यहाँ पे a और b की आप वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो a है वो -2 है और b की वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू -1. so y zero input of s you will be getting as -2 over s plus 1 minus 1 over s plus 2. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं टाइम डोमेन में जीरो इनपुट रिस्पांस का तो वो क्या हो जाएगा, -2 e raised to power -t minus e raised to power -2t. So that's your zero input response. Any questions, any confusions? No sir. Okay, now you know the complete response. अब आपका complete response क्या है? Zero input response plus zero state response. Y of s, that would be equal to y of zero state response plus y zero input response, and that's equal to s minus 5 divided by s plus 1, s plus 2, plus minus 3s minus 5 divided by s plus 1 and s plus 2. And when you solve it, you will be getting, of course, the polynomial you will be getting will be s plus 1, s plus 2. LCM लिया है जब आपने, तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है वो है -3s square minus 4s minus 5. Again a process of partial fraction. And finally a की वैल्यू जो है आपके पास that is -5 over 2, b जो है that is equal to 4, and c जो है that's equal to -9 over 2. So finally आपका जो response बनेगा y of s that's equal to -5 over 2s plus 4 over s plus 1 minus 9 over 2 s plus 2. Now you will tell me which section is the forced response and which one is the natural response. -5 over 2s is the forced response and the remaining is the natural. Good job. So that's my forced response portion.
this portion is associated with the natural response, and some of the books are saying this as free response based on the initial conditions only. ठीक है, जीरो इनपुट कंपोनेंट को अगर आप देखें, दिस इज जीरो इनपुट कंपोनेंट. That's directly linked with this because you can see from here s+1, s+2, s+1 and s+2. और जो आपका ये वाला पोर्शन है ये दोनों तरफ मौजूद है, यानी इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है जीरो स्टेट. ठीक हो गया जी. सो दिस वाज जीरो स्टेट कंपोनेंट एंड जीरो इनपुट कंपोनेंट, नेचुरल रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, नाउ मैं इसी चीज को the zero state and the zero input components, I will be seeing it in relation to the transfer function in a more generalized way. ये जो आपने बात की ना कि हम इस प्रोसेस में से क्यों गुजर रहे हैं, probably you will be able to appreciate this after doing these examples in a better way. Suppose आपके पास generalized terms में ये एक transfer function जो है वो मौजूद है. ठीक है, T of S is equal to generalized है B M of B subscript M S raised to power M plus B M minus 1 S of S raised to power M minus 1, and finally you are reaching to B naught. Similarly denominator में आपके पास है A N S raised to power N plus A N minus 1 S raised to power M N minus 1, and you are reaching to A naught, and N is greater than M because that's the generalized expression है. अब अगर आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं तो यू विल एंड अप विद दिस थिंग. ठीक, अब आपके पास असल में आपने क्या किया है, आपने किया y of s डिवाइडेड बाय r of s दैट्स इक्वल टू दिस, एंड देन y of s के साथ आपके पास ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, r of s के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो a n s रेज़ टू पावर n, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज a n d n y डिवाइडेड बाय dt रेज़ टू पावर n plus a n minus 1 d raised to power n minus 1 y divided by d t raised to power n minus y, and finally for this you will be getting a naught y. So these are the differentiation of this portion, and then finally you will be getting differentiation of this numerator portion here as well. यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको अगर कोई हो तो आप बताएं. एग्जाम्पल्स में हम पहले ये कर चुके हैं, but now we are seeing it in a more generalized fashion. Any questions, beta? No, sir. And why we are doing it? We are doing it to restore initial conditions, so that if a transfer function is given to us and we are interested in knowing the zero input response demands कि मेरे पास initial conditions की value मुझे पता होनी चाहिए, and transfer function is not giving me this value because I have already supposed that initial conditions zero हैं. So in order to get these initial conditions back, I will be moving into inverse Laplace transformation. I will be getting differential equations, and then I will be solving these differential equations in this way. अब देखिए d raised to power ny divided by dt n, अब ये क्या हो गया आपके पास, अब ये आपने इनिशियल कंडीशन रिस्टोर कर ली है आपने. इसी तरह से इस टर्म में इनिशियल कंडीशन आपने रिस्टोर कर ली, एंड फाइनली इन एवरी टर्म जो आप कर रहे थे. ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी, आपके पास टर्म्स हैं a n s raised to power n plus a n minus 1 s raised to power n minus 1. So these are the terms y of s. ये वाली टर्म्स हैं, ये वही वाली टर्म्स हैं जो ट्रांसफर फंक्शन से आ रही हैं. प्लस there are terms which are associated with the initial conditions. ये इनके साथ associated हैं. So these are the terms there. So finally, now this is the situation. So y of s is equal to t of s r of s, which is the zero state component, plus the polynomial in S with coefficients depending on the initial conditions divided by the characteristic polynomial. So this is your characteristic polynomial. And that's the complete response. Y of S complete, zero state component, zero input component. You have done it in your examples.
You have already done it. If you see this portion, so that's your zero state component. And that's the portion polynomial in S, which is associated with the zero condition divided by the characteristic polynomial. So that's the generalized expression you are getting here. Questions, please. जी बेटा, any questions? No, sir. No questions, sir. Okay. ये जो फीमेल स्टूडेंट थी इनका नाम क्या है? सर ईशा. ईशा बेटा जरा रिवाइज करें, हमने ये जो प्रोसेस किया है इसकी वजह क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर कंप्लीट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली कि हम जब अपना नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है और ये उसका एक जर्नलाइज्ड फॉर्म है. Any other person, any other volunteer who can reshape, इसको जरा पॉलिश कर दे इस आंसर को जो ईशा ने दिया है. सर क्वेश्चन ये है ना कि ये सर बोला तो सही है. आपका नाम क्या है? सर हाजिक. क्या? हाजिक. हाजिक. हाजिक बेटा, चले मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. Once a transfer function is given to you and you are interested in knowing the natural and the forced response, मैं बिल्कुल एंड की बात कर रहा हूँ, natural and the forced response, you know that you will be requiring a complete response. And the complete response requires that you have the zero state component and the zero input component. For a given transfer function, it's very simple to get the zero state component. But for zero input component, you need the terms which are associated with the initial conditions. But the transfer function already has assumed, by getting the transfer function, we have already assumed that the initial conditions were zero. So in order to restore those initial conditions, you will be transforming that transfer function into the inverse Laplace domain में आप चले जाएंगे, आप differential equation find out कर लेंगे, and from those differential equation again moving to the Laplace domain, you will be restoring your initial conditions, and then you will be getting the transfer function term, zero state component, and the terms associated with the initial conditions divided by the characteristic polynomial, which is your zero input component. So in this way, you can, by using YFS, transfer function, you can get the complete response. And from this complete response, by combining all these things, you will be moving to natural response and forced response. ठीक हो गई बात? जी सर. Okay, great. Okay, this is a great thing. Now, अच्छा, ये जो ट्रांसफर फंक्शन आप देख रहे होते हैं, अभी मेरा ख्याल है आपके एग्जाम में भी था, अदरवाइज सिंडिकेट सी और सिंडिकेट बी के जो एग्जाम थे डीएसपी के, उसमें मैंने एक पोर्शन जो है वो इस चीज से एसोसिएटेड दिया था, दैट वंस यू आर गिवन द जी प्लेन poles and zeros, you should be aware how the system time response will be. So in fact होता क्या है कि different partial fraction terms जो हैं जो आपके पास transfer function में होती हैं, they are contributing somehow to your time response. So let's see. ये आपके पास एक Laplace domain में S plane में आपके पास ये एक पोल प्लेस्ड है एट द ओरिजिन. आर यू कन्विंस्ड कि इसका जो टाइम डोमेन फंक्शन है वो ये होगा? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज आस्क. आप एग्री करते हैं इससे? यस सर, एग्री करता हूँ. क्यों एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, मुझे कन्विंस करिए.
सर क्योंकि अभी हमने देखा है कि जीरो से ये जो है पोल ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि 1/s इसका वो बनेगा, और जब इसका लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो वो u ऑफ t हमारे पास आता है। जबरदस्त। सो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ट्रांसफर फंक्शन जो है इसका वो है 1/s, ठीक, और 1/s का स्टेप फंक्शन है विच इज शोन हियर। और अगर आप चलें वो बाद में बाकी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बारे में बताइए, आर यू कन्विंस्ड कि इसका इस तरह से ऑसिलेटरी बिहेवियर होना चाहिए? जी सर, बिकॉज ये s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, और सर वो हमारे पास हमने जब उसका इनवर्स लेंगे तो सर वो हमारे पास साइनोसाइडल बन जाएगा। सर क्यों वो क्यों बन गया साइनोसॉइडल? सर वो s ओवर s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म में आ जाएगा, तो दैट इज द इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन। It is in fact s over s plus b square, yes, because it is s over s plus jb। और दूसरे तरीके से इसे, आपकी बात ठीक है, कोसाइन की टर्म्स बन जाएंगी ट्रांसफर फंक्शन में, बट अच्छा चले, मैं ये कहता हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इनफैक्ट b जो है ना ये ओमेगा है, ठीक है, आपकी बुक में b जो है वो ओमेगा है, जे ओमेगा एक्सिस पे b है। मैं चाहता हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपको नजर आ रही है, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, क्या करना पड़ेगा मुझे ट्रांसफर फंक्शन पे? इधर एस प्लेन में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, यूं समझ लीजिए, चले मैं यूं कह देता हूं, ऑसिलेशंस जो है मैं ज्यादा कर रहा हूं। जी, क्या हो रहा है एस प्लेन में, क्या हो रहा है? सर बी और नेगेटिव बी का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा ओरिजिन से। बी और नेगेटिव, देखिए ये जे ओमेगा एक्सिस है आपका, ठीक है, और इस बात की इंडिकेशन ये है कि जैसे ही ये, अच्छा ये ऊपर गया है, ये जैसे जैसे बी बढ़ता चला जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी इनफैक्ट इट्स ओमेगा, तो ये बढ़ती चली जा रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे आपको ऑसिलेशन जो है वो ज्यादा नजर आएगी। चलें एक चीज, लेकिन व्हाई दे आर प्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्मेट, क्या वजह है ये? जी ऐसा भी तो हो सकता था, यहां पोल रखने की क्या जरूरत पेश आई है, क्या वजह है ये? यू हैव सीन इट इन योर डीएसपी कोर्स एज वेल। स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी। कोई और साहब? Why you want to place complex और conjugate दूसरा ये है form? कि p आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। क्यों आते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्यों आते हैं? सर क्योंकि फेज जीरो है इसका। अगर फर्ज किया, चलें आपको ज्यादा फेमिलियरिटी इस वक्त जो है अगर जी डोमेन से है, तो मैं ये पोल लेके चल रहा था जी डोमेन में, क्यों कर रहा था मैं ये काम? मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों कर रहा था? यानी रियल पोल तो सिंगल हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैं रियल एक्सेस से ऊपर उठता हूं मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की तरफ जाता हूं। व्हाट वाज द रीजन? टू हैव रियल कोएफिशिएंट्स इन माय डिफरेंस इक्वेशन। देखिए बेटा, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, सपोज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, इधर हम बात कर रहे हैं एस जी माइनस आर जे थीटा, आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा, एंड z माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस जे थीटा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा दैट वुड बी z स्क्वायर माइनस 2r कोसाइन थीटा z प्लस r स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा। सो दीज आर ऑल रियल कोएफिशिएंट्स, ये भी रियल है, यहाँ पे 1 जो है वो भी रियल है, और r स्क्वायर भी रियल है। सो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में नहीं रखता हूं, तो इन दैट केस माय कोएफिशिएंट्स विल बी complex.
So that's the main motivation of having complex conjugate pairs both in Z domain and S domain to make your differential equation और difference equation coefficients जो हैं उनको रियल रखने के लिए, रियल अरिथमेटिक इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और आपको ये करना पड़ता है. और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस जो आपका है सिमेट्री मेंटेन करने के लिए you have to have this complex conjugate pair. Have I explained the reason? जनाब, yes, no, maybe कुछ तो बोलें. Yes sir. Okay. Now what about this one? Pole on the left hand side, your function is decaying, k e raised to power minus e minus at. So a is some number. So जैसे जैसे अगर पोल इस तरफ लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर a आपके पास जो है वो फंक्शन जो है वो डिकेइंग होगा. सिमिलरली अगर पोल जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ है, इन दैट केस k e raised to power at and the function will be increasing in time domain. It's just like कि पोल जो है अगर z डोमेन में देखें तो अगर पोल यूनिट सर्कल से बाहर पड़ा हुआ था तो दैट वाज इंक्रीजिंग फंक्शन था, और अगर पोल जो है और सिस्टम आपका स्टेबल था, और अगर पोल जो है सिस्टम अनस्टेबल था इस केस में, और यहाँ पे टाइम फंक्शन क्या होगा आपका, ये डिकेइंग फंक्शन होगा. तो सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग हियर एज वेल कि अगर पोल जो है वो लेफ्ट हैंड प्लेन में है तो इन दैट केस लेफ्ट साइड पे है तो इन दैट केस दैट्स अ डिकेइंग फंक्शन, और अगर आपका राइट प्लेन में है तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. बाद में स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बाद में बात कर लेते हैं. सिमिलरली हियर ये देखिए, जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर आ गए. यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज यू आर ऑन द रियल एक्सिस. ओमेगा इज इक्वल टू 0 की बात हो रही थी, यहाँ पे भी ओमेगा इज इक्वल टू 0 की बात हो रही थी. लेकिन जैसे ही आप इमेजिनरी एक्सिस पे गए हैं, सो इस बात का मतलब है यू हैव अ नॉन जीरो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ दैट. लेफ्ट साइड पे है तो डिकेइंग है, और ऑसिलेशंस किस वजह से हैं सिस्टम में, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी. इसी तरह से राइट हैंड साइड पे है तो इंक्रीजिंग है, और फ्रीक्वेंसी ये जो ऑसिलेशंस आपको नजर आ रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी. कन्विंस्ड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, if you have a double pole, in that case the function is increasing. और अगर आपके पास डबल पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस हैं तो इस बात का मतलब है कि अगेन यू आर इंक्रीजिंग, आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है. ऑसिलेशंस आपको नजर आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस नॉन जीरो एंगुलर फ्रीक्वेंसी. डबल पोल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, और डबल पोल ऑन द राइट हैंड साइड दैट वुड बी योर इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ स्टेबिलिटी को मैं भी टच नहीं करता हूं, आई लीव इट हियर. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ये जो रिस्पॉन्सेज हमने देखे हैं और उनका टाइम ट्रांसफर फंक्शन के साथ जो एसोसिएशन है टाइम रिस्पॉन्स की, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज आस्क. सर ये सेकंड लास्ट वाला काइंडली एक्सप्लेन करते हैं जो आपने किया. वन ये वाला सर, ये दोनों. कौन सा वाला? यही वाला? यस सर, बोथ ऑफ दीज जो टॉप और बॉटम पे हैं. जी जी. तो ये आपका जब ये पोल आपके पास सिंगल पोल था, जब आपके पास सिंगल पोल पड़ा हुआ था तो इन दैट केस क्या सिचुएशन थी? द रिस्पॉन्स वाज समथिंग लाइक दैट. जब आप यहां पे डबल पोल ला रहे हैं so as a result of that we are seeing कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. डबल पोल जो है ना इंटेंसिफाई कर रहा है सिचुएशन को, एंड दैट्स योर रैंप आ जाएगा ना, 1/s² वाली टर्म आ जाएगी. यही है ना?
ट्रांसफर फंक्शन क्या बन रहा है इसका? यस सर यही बन रहा है. दैट इज इक्वल टू टी, u ऑफ टी साथ लगा दें, ठीक है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका रैंप बन गया. सिमिलरली डबल पोल अगर आप लेके जाते हैं इधर इमेजिनरी एक्सिस पे, तो ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग जो राइजिंग फंक्शन है वो तो होगा, और ऑसिलेशंस कहां से आ रही हैं? ऑसिलेशन नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रही हैं. जब भी आप इमेजिनरी एक्सिस, आप रियल एक्सिस से ऊपर उठे हैं, जब भी आप इस रियल एक्सिस से ऊपर उठेंगे, इसका मतलब है आपके पास नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी जो है वो मौजूद है. नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में किस तरह से नजर आएगी? ऑसिलेशन की फॉर्म में नजर आएगी. और नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह से नजर आएगी? There will be some content on कुछ चीज आपके पास पड़ी हुई होगी. ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, ओमेगा एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज ओमेगा, दैट्स एच एफ ओमेगा कंटेंट्स की बात अगर मैं बात कर रहा हूँ. इन दैट केस यू विल बी हैविंग some non-zero content related to that frequency. But time domain में जो time signal है, that would be showing you the oscillations, because frequency is in fact the oscillations in time domain. Clear है बेटा ये बात? सर वो पिछली स्लाइड दोबारा दिखा दें एक दफा. जी सर. ठीक है सर. ठीक है बेटा, इसको फिर यहीं रोक सर देते हैं. इसमें जी जी बोले बोले. दोनों पोल जीरो पे पड़े हैं ऊपर वाली जी इक्वेशन दोनों में. पोल जीरो पे पड़े हुए हैं. डबल पोल या डबल रूट एट s is equal to 0, and that's why s is equal to 0 पे है. So that's why you are not seeing any frequency, any oscillations here. Response आपका straight है, ramp function है. But here because आपका जो नॉन जीरो एंगुलर वेलोसिटी आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस की है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास ऑसिलेशंस आ रही हैं. बट राइजिंग किस वजह से? इस डबल पोल की वजह से. अगर यहाँ पे सिंगल पोल था तो क्या सिचुएशन थी? सर सिंपल साइनोसाइड होती. सिंपल साइनोसॉइड है, एज यू हैव सीन इट. सिंगल पोल की सिंपल साइनोसॉइड है, एंड द फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ b, जो y एक्सिस पे आपके पास j ओमेगा एक्सिस पे है. तो जैसे जैसे b बढ़ता चला जाएगा, 2 पाई ओवर b, द वेवलेंथ जो है आपकी वो छोटी होती चली जाएगी और आपकी ऑसिलेशंस बढ़ती चली जाएंगी. ठीक है बेटा? सर जी बोले. सर जिसमें सेंटर पे 2 जीरोस पड़े थे उस वाली स्लाइड पे काइंडली जाइएगा. जी बोले. जी आ गया बेटा, बोले. सर इसके अंदर अगर हम डायग्राम में देखेंगे जो टॉप पे है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास सेंटर पे दोनों जीरोस नहीं है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल्स आ रहे हैं. उसकी हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे? अभी तो हम वो आ जाएगा वक्त. अभी तो मैं सिर्फ ये जो टिपिकल प्लॉट्स थे उनको आप देख लें, बाकी बाद में हम कर लेंगे. प्रोबेबली यू आर आस्किंग अबाउट दिस थिंग. यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है. यस सर. हाँ तो कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्पेशल रिस्पॉन्सेज. आप इनके बारे में देख लें. राइट सर. ठीक है, वो स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो हम डिटेल में दोबारा इनको देखेंगे. बट राइट नाउ आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कर्टन रेजर काइंड ऑफ थिंग के किस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो बिहेव करते हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन के एसोसिएशन में. ऑलराइट सर. ओके सर ये बुक के हम कौन सा अभी सेक्शन कवर कर रहे हैं सर? चैप्टर 1 में ही है. राइट सर. ओके जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. अटेंडेंस लिस्ट मैंने डाउनलोड कर ली है.